Welcome to all. I am Nishi Bhati. I am Devanshi Rathod. Welcome you all in Modern Media Club. तो आज हमारे साथ है द इको वॉरियर डॉक्टर आरती भंडारे. नमस्ते मैम. नमस्ते. Ma'am, what made you decide to pursue a career as an eco warrior? First of all, if you are really listening to me with not for the sake of the interview, but because you're a 10th standard and moving ahead with your life, it was not a strategic decision कि I want to be an eco warrior, because ना इस field में fame है ना there is money. Who would like to work in a field जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है? Instead you get a lot of hatred, you get a lot of rejections, and at times you feel like giving up on life. So this was not a strategic decision कि I will make a career. I was a successful dentist, I was a topper in my university, and I was practicing really well. I was also going to continue my post-graduation, and I'm sure I would have been a very good dentist. But in 2015, when the entire nation was suffering from water scarcity, and I don't know how many people in the country really thought that they should do something about it, and I feel very proud of myself that चलो कोई नहीं कर रहा है तो मैं करती हूँ. And many people made fun of me saying that एक के बंदे के करने से क्या होगा. But now after 10 years I think that because I started, so many people joined me. So the main reason that I started was to make somebody else's problem mine. Now it may look like I'm boasting, but when I got into it I realized कि we have a lot of things to use. We are highly privileged people. You all are taking my interview. I'm wearing a nice sari. You all have phones. There are some people who lack basics. They don't even have clear drinking water. And in a place like Rajasthan, which is so dry, if I would have been here, I think I would have been 10 times more famous. So I'm doing a job in a place जहाँ पर पानी की कोई scarcity नहीं है. But when you go away from that place, there are many people who are suffering. That is why I ventured into it, because हमारे पास सब कुछ है, but it is not equally distributed. So I just wanted to create awareness कि ये planet Earth हम सबका है, and no one should take a monopoly and try to make it only theirs. इसीलिए I came into this field. And even now if I want to go back, I don't think I'll be able to go back, because मैं पूरी तरह उसमें I'm submerged into it. What are the problems you faced during your work? Earlier I used to face problems. Now I don't call it problem because अब मुझे आदत हो गई है. First problem is people slamming their doors on my face saying that we don't need awareness programs. Second is funds, पैसा you don't get. And third, the biggest problem is people don't feel that this is necessary. So tomorrow if me and you go to a school, we approach a school and आप बोलोगे कि हम coding सिखाने आए हैं, or we are teaching AI, and I say that I'm going to teach you how to make vermicompost using earthworms. 99% of the times they will say Atishi aap aa jao, and you get out. So people not understanding that this is the must, that is my biggest problem. That worries me, because मेरा बेटा है who is 15 years old, and I'm not sure whether he'll have a life like that what I had when I was a kid. No pure drinking water, no fresh air. We never had an air conditioner even when it was 40 degrees. But now I think, look at the condition, even in the month of October, जहाँ पर it should be actually colder, we are having to use ACs. What bigger proof that we need, that earth is in a bad shape right now. So these are basically the problems. Otherwise गिनने जाओ तो there are many, but I don't think they are problems. These are the major three. आप आने वाले कुछ समय में अर्थ में, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस देखना चाहेंगे? एनवायरनमेंट, अर्थ में मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए. अर्थ इज परफेक्ट द वे शी इज, बिकॉज वो माँ है, वी कॉल मदर अर्थ. शी इज परफेक्ट द वे शी इज. ह्यूमन बीइंग शुड एक्चुअली इवॉल्व. जो हमारा आज का टॉपिक भी है, इज इवॉल्व. एंड इवॉल्व नॉट इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडिंग टू अ बेटर फोन या लुक्स वाइज, या अपग्रेडिंग टू अ बेटर बिगर टीवी. वी शुड इवॉल्व इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग गुड फॉर अस एंड फॉर अदर्स. जब हम अपने सराउंडिंग के 10 लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, और वी थिंक अबाउट द बेनिफिट ऑफ 10 others, automatically earth will start healing. So suppose yesterday we had gone for dinner, all the guests, without asking उन्होंने हर guest के सामने एक एक water bottle रख दी. So there is no chance that each one will drink 1 liter of water. And there were 25 to 30 guests, so 30 liters of water. At the end of the program, 25 liters was wasted. सारी बॉटल आधी आधी यूज़ की थी, और बाकी आधी people have thrown. In a place like Rajasthan, जहाँ पर there is so much water problem, वहाँ पर nobody thinking about what is going to happen in the future.
मुझे ये चेंज देखना है कि ह्यूमन बींग्स थोड़ा इम्प्रूव करें. वी शुड नॉट बिकम लाइक एनिमल्स. वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन. सो आई थिंक वी शुड ट्राई टू प्रूव दैट वी आर इंटेलिजेंट. लोग कैसे अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो एनवायरनमेंट को बेनिफिट करें? वेरी ईजी. आप अभी से शुरू कर सकते हो. सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैंड है. प्लीज़ फॉलो द रूल्स. डोंट यूज़ इट जहाँ पर नेसेसरी नहीं है. जितना हो सके स्विगी और जोमेटो कम करो. ओके अगर आपको बाहर की चीज़ खानी है तो टेक योर ओन डब्बा. हमारे बैंगलोर में, कर्नाटक में देयर इज़ अ कैंपेन गोइंग ऑन जिसको बोलते हैं वॉश योर डब्बा. वॉश योर डब्बा मतलब इफ़ यू गेट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड पार्सल और अगर उसमें खाना बचा है तो वो इजीली रिसाइकल, वो जो डब्बा है वो इजीली रिसाइकल नहीं हो पाता. सो यू वॉश इट जैसे कि वो सोने की कोई चीज़ या चांदी की चीज़ है. गिव इट वैल्यू एंड देन डिस्पोज इट बिकॉज प्लास्टिक ऑल्सो गेट्स रिसाइकल्ड. लेकिन प्लास्टिक अपने आप चल के रिसाइकलिंग फैक्ट्री तक नहीं जाता. सो कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल. आई सॉ मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव योर ओन स्टील बॉटल्स, लेकिन बहुतों के पास प्लास्टिक वाली बॉटल्स भी है. ट्राई अवॉइडिंग एज मच प्लास्टिक इन योर लाइफ. खाना और प्लास्टिक शुड नॉट बी मिक्सड. गर्म पानी प्लास्टिक शुड नॉट बी मिक्सड. चाय एंड प्लास्टिक शुड नॉट बी मिक्सड. अपने कंज्यूमरिज्म को कम करो. जैसे इफ़ यू हैव अ रेड कलर ड्रेस और थीम पार्टी में आपको ग्रीन कलर ड्रेस पहनना है तो इधर किसी से मांग लो या फिर हैव द करेज टू से दैट आई डोंट हैव अ ग्रीन ड्रेस, आई विल वेयर अ रेड ड्रेस ओनली. या फिर किसी जस्ट रेंट इट आउट. यू डोंट हैव टू गो टू अ मॉल एंड परचेज इट जस्ट बिकॉज इट डिमांड्स. तो क्या होता है, एवरीबडी सेज दैट मेरी फ्रेंड ने रेड पहना, मुझे भी रेड चाहिए. आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ घाघरा, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ फोन. डोंट कम इन टू प्योर प्रेशर. Ratan Tata ji expired yesterday. What did he take with him? He left everything for the country and he went. एक बार उनका एक इंसिडेंट आई रिमेंबर, किसी ने बोला था कि he never had anything in his pockets. उनके जो ट्राउजर्स थे उसमें पॉकेट्स ही नहीं थे. तो किसी ने पूछा you don't have anything in your pockets? तो इट सीम्स उन्होंने कहा मैं जाते वक्त सब यहीं पर छोड़ के जाने वाला, तो why do I need pockets to fill? तो कंज्यूमरिज्म इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई अर्थ. कंज्यूमरिज्म मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दो, बट अगर आपका पेट एक रोटी से भर रहा है तो प्लीज़ डोंट टेक 3 रोटीज एंड वेस्ट इट. एंड जो आप लोग कर सकते हो राइट फ्रॉम टुडे, स्टॉप वेस्टिंग फूड एंड वाटर. जैसे किसी ने आपको पानी सर्व किया, इफ़ यू डोंट वांट इट प्लीज़ से आई डोंट वांट इट. उसको जूठा करके फिर वो डोंट थ्रो इट. खाना अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जी पसंद नहीं है, डोंट ईट इट बट डोंट टेक इट एंड डोंट वेस्ट इट बिकॉज यू डोंट नो दैट वन वैल्यू ऑफ 1 grain ऑफ राइस. आपको उसकी कीमत पता नहीं. जब तक आप हमारे बेलगाम में आके पैडी फील्ड्स में काम नहीं करोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट 1 grain ऑफ राइस. सो कंज्यूमरिज्म कम करो. जितना होता है प्लास्टिक अवॉइड करो. ट्राई यूजिंग रीयूजेबल्स. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम टिश्यू पेपर. यूज हैंकरचिफ. एक ही ड्रेस लो फॉर योर नवरात्रि. मेक इट प्योर कॉटन या लिनन, अच्छे क्वालिटी का, मे बी एक्सपेंसिव, जस्ट बाय वन. डोंट फॉल फॉर फ्लैश सेल्स 499 299. तो इफ़ यू डू दैट आई थिंक शुरुआत वहीं से होगी. एंड आई हैव एन इंस्टाग्राम पेज कॉल्ड एज अमूल्य बूंद फाउंडेशन. फॉर मोर टिप्स यू कैन फॉलो दैट पेज. अगर कोई एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट बनना चाहता है तो अपनी शुरुआत कहाँ से करें? मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ. एक्टिविज्म डज नॉट हेल्प. सॉल्यूशंस, गिविंग सॉल्यूशंस हेल्प. तो दिस इज़ अ रॉन्ग वर्ड एसोसिएटेड विथ मी कि मैं एक्टिविस्ट हूँ. मैं बिल्कुल एक्टिविस्ट नहीं हूँ बिकॉज इफ़ यू लुक एट मी राइट नाउ आई हैव वोन अ गोल्ड मंगलसूत्र. आई हैव वोन अ सिल्क साड़ी जिसमें कितने सारे सिल्क्स पता नहीं आर हार्म्ड. I have used slight makeup, although it is organic, but still I have used. मैंने वॉच पहना है. I have worn shoes which are made up of reusable plastic. तो if you see मैं एक्टिविज्म कर ही नहीं सकती because I have taken a flight to come from Bangalore to जोधपुर and जोधपुर यहाँ वापस मैं जोधपुर जाने वाली हूँ. तो 3 flights. How can you call me a climate activist अगर मैं खुद पोल्यूशन कर रही हूँ? अभी दिवाली में मेरे घर में पटाखे जलाएंगे. हाउ कैन यू कॉल मी एन एक्टिविस्ट? होली में हम लोग पानी से खेलते हैं, वी वेस्ट वाटर. हाउ कैन यू कॉल मी एन एक्टिविस्ट? सो आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट. आई एम एज रॉन्ग एज एवरीबडी इज, बट डिफरेंस ये है कि आई एम माइंडफुली टेकिंग डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल अगर अगेन लेट मी कम टू वाटर. इफ़ यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर आई विल से मुझे प्यास नहीं लगी है, प्लीज़ टेक इट. और अगर मैंने वो ली, एक्सेप्ट की, तो आई विल ड्रिंक ऑल ऑफ इट. हाउ डू यू स्टार्ट इज
यहाँ से शुरू करो. डोंट बिकम एन एक्टिविस्ट बिकॉज अच्छा वो एक्टिविस्ट बहुत अच्छी थी, उनके 71,000 फॉलोअर्स थे तो मैं भी उनके जैसे. डोंट ट्राई टू बिकम लाइक समवन. व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन, चूज कि मेरे ये करने से किसी को क्या फ़ायदा होगा और ये करने से किसी को क्या नुकसान होगा. टू ईच हिज ओन. तो शुरुआत यू हैव टू बी रियली बी रेडी टू बी रिमूव फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप्स, बी रेडी टू बी ऑस्ट्रेसाइज फ्रॉम द सोसाइटी. बर्थडे पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, आपको टोटली इग्नोर करेंगे, बट दैट इज ओके. इफ यू आर रेडी फॉर इट, गो अहेड. What are your hobbies? Hobbies, I like to play with earthworms because my kitchen waste, which is around 5 kgs per day, is composted by them. They make fertilizer with it, earthworms, in 7 days. So whenever I'm upset or whenever I'm angry, I go to my hobbies. That's earthworms. I do gardening. I have around 500 plants or trees in my own house. I grow a lot of vegetables and fruits in my own terrace garden. Baki music, paint, art, anywhere where there is wastage or just time pass for the sake of telling, oh I love music, oh I love painting, none of them. I love putting my hand in soil and I think that is my only hobby. I love to cook. That's it. No specific hobby as such. Gardening, you can say. Thank you, Gyana Vinanda. Thank you.